यस मैम, यस मैम। लास्ट क्लास यू वर आस्किंग ना कि कैसा होगा करके, तो आज ही वो डिसीजन आया है कि कैड ये एमसीक्यू पैटर्न से होगा, कैट 2 और सेशनल दोनों भी। तो आई हैव फिनिश विद, थोड़ा सा मुझे आई हैव टू एडिट सम नोट्स एंड आई विल सेंड यू some notes on Google Classroom of Unit 3, and in the next week we will finish off with Unit 4 and then I will send you the notes accordingly. ठीक है? Today we will start with Unit 4 now. किसी को कुछ पूछना है? अभी तक जो बताया उसमें? No ma'am. Just share the screen because today I am in PIGC, so again there is a lots of network issues, so I have to take it from my phone. इसमें भी बहुत गड़बड़ है, but still I will try. I'll explain you the meaning properly so that it will be easy for you when you go through the notes to understand. ठीक है, MCQ for question Unit 4 is very easy if you go for MCQ based, क्योंकि समझ में आ जाएगा आपको अभी. चलो, what is Unit 4? Unit 4 as the heading says ethical human conduct. Ethical human conduct मतलब क्या in a layman's language? Is everyone able to see the screen? Yes. Yes ma'am. जस्ट बेयर विद दिस बेटा, बिकॉज ये कैसे फोन पे ले रही हूँ ना, थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो गया करके थोड़ा सा उसका सेटिंग इधर उधर हुआ है. ठीक है, बट ये मैं आपको ना कंसेप्चुअली, द लैंग्वेज इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन कंप्लीट यूनिट एंड टुडेज टॉपिक. ठीक है, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट यू इन हिंदी सो दैट मीनिंग समझ में आ गया तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व एमसीक्यूज. So what is ethical human conduct? Human conduct, you all know, human behavior. Conduct मतलब behavior, यानी हम कैसा behave करते हैं. और ethical मतलब, ethical human conduct means you have to ethical is that properly means someone is there, I think. Ethical मतलब with one who follows, one who conducts himself with ethics. Now what does ethics means? Ethic मतलब अपना values जो अपन पढ़े कि whatever, if you follow all the human values properly, then and you conduct, you behave according to those values, then your behavior will be treated as ethical. That will be ethical human conduct. ठीक है, that is ethical human behavior. Now we will see the definition. The right understanding gained through self-exploration also enables us to identify the definitiveness of human conduct, which may also be called as the ethical human conduct. Basically, what you have to study in this today's topic is what is definitiveness of ethical human conduct. Now, what does definitiveness mean? जैसे ये हर जगह आपको मिलेगा ये टॉपिक, पर डेफिनेटिवनेस का मतलब क्या होता है? फाइनल डिसीजन कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा होना चाहिए. डेफिनेटिव मीन्स फाइनल, दैट इज कंक्लूसिव डिसीजन कि हाउ द ह्यूमन बिहेवियर शुड बी. In the first slide we saw what is ethical human conduct. Ethical human conduct मतलब human being का conduct कैसे होना चाहिए जिससे कि उसका conduct ethical रहे. Ethical मतलब the one who follows all the values and norms of the society. समझा क्या? कंसेप्ट समझा? एथिकल ह्यूमन कंडक्ट क्या है? Yes ma'am. यस, और सिर्फ शिखर को समझ रहा है कि सबको? Yes ma'am. Yes ma'am. एवरीवन. देखो, जब पढ़ने जाएंगे तो आपको ये बहुत ही बोरिंग लगेगा, इसलिए मैंने पीपीटी बनाया है, नोट्स पर से नहीं इसको लिया है. बट अनफॉर्चुनेटली आज यहाँ पे नेट नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब कोई कोई स्लाइड थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो सकता है, बट you can see. Now first I explained you what is ethical human conduct. Ethical human conduct मतलब behavior. Ethical मतलब जो सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज फॉर्म करता है, फॉलो करता है. तो ऐसा बिहेवियर होना चाहिए आदमी का, आदमी मतलब इंसान, बी इट गर्ल और बॉय, जिससे उसका बिहेवियर एक सोसाइटी में एथिकल होना चाहिए. नाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट डिटरमाइन the definitiveness of ethical human conduct? Definitiveness means decision or final decision how the human conduct should be. So what are the things that determine the definitiveness of ethical human conduct? तो पहला है values. अब टॉपिक समझ गया ना क्या है, क्या पढ़ रहे हैं अपन? Yes ma'am. ठीक है, डेफिनेटिव का मतलब होता है डिसीजन, ये फाइनल डिसीजन कि एक सेटलमेंट होता है कि हाँ भाई ये सही है ये गलत है. ठीक है, ये डिसीजन कौन लेता है? जैसे हम
हमारे जैसे लोग जो बाय डिफॉल्ट अपन जैसे देखिए पहले से क्या होता है, जैसे हर किसी की अपनी एक क्वालिटी होती है, ठीक? तो कोई सोसाइटी बोलेगी हमारे में ऐसा होता है, हमारे में वैसा होता है, ये तो थोड़ा बहुत चलता है, बट ऑन एन एवरेज अगर अपन देखे जाए तो जो अपन ने 9 वैल्यूज देखे हैं, जैसे ट्रस्ट है, ये सब चीजें, तो बाय डिफॉल्ट हर किसी को लगता है कि नहीं भाई किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए. तो देर आर सम वैल्यूज विच आर एग्रीड बाय ऑल ऑफ अस इन द सोसाइटी. कुछ ऐसे वैल्यूज और नॉर्म्स है जो हम सबको, आज का जनरेशन हो या अगला जनरेशन हो या हमारे पहले का जनरेशन हो, सब लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ दीज आर द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी. तो ऐसे जो फिक्स हो जाता है कि ये सही है, उसको बोलते हैं डेफिनेटिवनेस. और डेफिनेटिवनेस ऑफ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट मीन्स एक ह्यूमन ने कैसे अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए इन अ सोसाइटी, दिस इज, और वो कैसे कंडक्ट करता है, इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया है. तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें. फर्स्ट इज वैल्यूज, सेकंड इज पॉलिसी एंड थर्ड इज कैरेक्टर. वैल्यूज को बोलते हैं मूल्य, मतलब अपने हिंदी में या संस्कृत में या मराठी में मूल्य. एंड पॉलिसी इज नीति, आपकी नीति कैसी रहेगी, व्हाट विल बी योर पॉलिसी. एंड कैरेक्टर, कैरेक्टर इज चरित्र. Now if you see, it is very easy to understand the words in English than in Hindi, but in the notes or in everywhere, मूल्य, नीति, चरित्र, ये सब वर्ड्स दिए हैं. सो मे बी एमसीक्यूज कभी इसके ऊपर भी आ सकते हैं, इसीलिए आपको आई एम एक्सप्लेनिंग इट इन बोथ द लैंग्वेज. दैट इज वैल्यूज इज मूल्य, पॉलिसी इज नीति एंड कैरेक्टर इज चरित्र. Now first we will see what are the values, what should be the values if really you want that your behavior should be ethical or your behavior should be there should be how a human being behaves in a ethical way. These are the values which he or she follows. So first is values in self. खुद में अभी वैल्यूज भी 4 टाइप के हैं. तो पहला है सेल्फ में, अपने अंदर में क्या वैल्यूज होने चाहिए. तो अभी ये डिटेल में मैं नहीं बता रही हूँ, मतलब यहाँ पे विल नॉट रीड लाइन टू लाइन, आई विल जस्ट रीड द हेडिंग्स. फर्स्ट वैल्यू इज हैप्पीनेस, दैट इज सुख. एवरीवन वांट्स दैट यू शुड बी हैप्पी. नाउ हाउ यू विल डिटरमाइन योर प्रॉपर सोच, आपकी सोच सही होना चाहिए, आपका सिलेक्शन ऑफ थॉट्स शुड बी गुड, देन ओनली यू विल बी हैप्पी. ठीक है. देन सेकेंड इज पीस, दैट इज शांति. देखो सुख, शांति. फोर्थ इज सेटिस्फैक्शन and third is anand, that is bliss. So all these 4 values are the values which give happiness to the self. अभी अपन ने यूनिट 1 या यूनिट 2 में पढ़ा था सेल्फ क्या है. सेल्फ क्या होता है, व्हाट इज सेल्फ. सेल्फ और बॉडी 2 चीजें हैं एक ह्यूमन में. एक होता है सेल्फ और दूसरा होता है बॉडी, जिससे पूरा ह्यूमन बनता है. तो व्हाट इज दैट. सेल्फ मतलब क्या, आई में आई. यस, वेरी गुड. आई और इसको अगर और अपन एलैबोरेट करें तो हिंदी में मैं जिसको बोलेंगे ना आप, मैं आपको कॉन्शियस. यस Yes, ma'am. योर कॉन्शियस, यानी आपका अंदर का मन जिसको बोलते हैं ना, मैं यानी मन आपका. तो वो कब खुश रहता है, उसकी क्या वैल्यूज होना चाहिए. तो उसकी वैल्यूज होना चाहिए हैप्पीनेस. मन हमेशा खुश रहना चाहता है या खुश रहना चाहना चाहिए. और खुश रहने के लिए क्या है, आपके एक्सपेक्टेशंस, आप जो आपके एक्सपेक्टेशंस है वो आपके अनुसार बराबर, जितना अपना बोलते हैं ना, जितनी चादर उतना पैर फैलाना चाहिए, या फिर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रहे तो यू विल गेट हैप्पीनेस. फिर पीस, आपका थॉट, आपकी सोच अगर सही है तो आपको शांति मिलती है. देन सेटिस्फैक्शन, देन देयर इज नो लिमिट, और किसी भी चीज के लिए कोई लिमिट नहीं है. मगर सेटिस्फैक्शन, संतोष कब मिलता है, जब अगर अपन अपने आप को कहीं तो भी अपन सर बोलते ना सेटिस्फाइड हो जाना, मतलब कंटेंटमेंट अगर आप में आ गया कि हाँ आपके डिजायर्स पे आपने कंट्रोल ला लिया, तो देन यू विल गेट सेटिस्फैक्शन. एंड द लास्ट इज आनंद, दैट इज ब्लिस. ब्लिस इज दैट वॉट एवर यू डू, व्हेन यू रियलाइज दैट, या फिर व्हेन यू गेट द आउटकम ऑफ एनीथिंग, वॉट एवर एक्टिविटीज यू डू, आप जो भी कर्म करते हो उससे जो आपको जो उसका व्हाट यू से यू गेट द प्रोडक्ट, या फिर आप उसका आउटकम जो आता है आपके सोचे हिसाब से आएगा, तो आपको आनंद मिलेगा. तो ये पहले वैल्यूज हो गई. दैट इज जी अपन पढ़ रहे हैं कि एथिकल ह्यूमन कंडक्ट होने के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है. पहला है वैल्यूज, दूसरा है पॉलिसी और तीसरा है कैरेक्टर. तो वैल्यूज कौन सी होनी चाहिए, तो सेल्फ, खुद की खुशी को, खुद को कौन सी वैल्यूज खुश मतलब इम्पोर्टेंट है सेल्फ के लिए, कॉन्शियस के लिए, दैट इज हैप्पीनेस, पीस, सेटिस्फैक्शन एंड
आनंद, दैट इज ब्लिस। समझ रहा है कि थोड़ा सा व्हाट इज द अप्रोच, हाउ डू यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक? यस मैम। Yes, ma'am. देखो अभी जो भी लोग सुन रहे हैं ना, ध्यान से समझ लो, है ना। ये जो जैसे अभी ये सब वर्ड्स तो ऐसे है, सुख, शांति, संतोष, आनंद, ये तो सब अपने को पता है, इसका मीनिंग भी नहीं, मगर ये जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है इसका अप्रोच क्या है, कैसे अप्रोच से इसको समझना है। इसका अप्रोच ये है कि एक आदमी के लिए, अगर उसका, एक आदमी मतलब आप, मैं, हर कोई, एक सोसाइटी में जब एक बंदा जीता है तो उसको एथिकली जीना है, और अगर वो एथिकली जी रहा है तो उसको 3 चीजों का ख्याल रखना है। एक वैल्यूज, दूसरा पॉलिसी, वो अभी अपन देखेंगे, और तीसरा उसका कैरेक्टर। अब वैल्यूज में भी 4 टाइप के वैल्यूज है। पहला वैल्यूज है खुद के लिए, ठीक है, अपने आत्मा, जो इसको बोलते हैं ना, आत्मा जो अपन ने पढ़ा है, तो वो उसको क्या खुशी दे सकता है, तो ये 4 चीजें, हैप्पीनेस, पीस, सेटिस्फेक्शन एंड ब्लिस। ठीक है, ये है तो जीवन के मूल्य, बेसिक मूल्य ऑफ लाइफ। हाँ, देन नेक्स्ट इज, हाँ, फिर ये है, सेकेंड इज, आर यू एबल टू सी एवरीवन, वैल्यूज इन ह्यूमन रिलेशनशिप, मतलब व्हेन वी ईच अदर कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। जैसे आप अपने पियर्स के साथ है, पहला क्या हो गया, सेल्फ हो गया, दूसरा क्या हो गया कि आप अपने अब पहला अपने आप के लिए था, दूसरा है आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, किसी के भी साथ कांटेक्ट में आते हो, या ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप होता है, तो उसमें कौन से वैल्यूज होने चाहिए। ठीक है, तो इसको दिया है हिंदी में संबंध वैल्यू, मतलब अपने संबंध जिसके साथ है, संबंध यानी आपके रिलेशनशिप जिसके साथ है, उसमें कौन से वैल्यूज है। तो ये 9 वैल्यूज जो अपन ने पिछले क्लास में पढ़े थे, वैल्यूज इन रिलेशनशिप। आई होप यू रिमेम्बर नाउ। इट इज ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, रेवरेंस, ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड, लव। अब उसको हिंदी में दिया है इन्होंने, वो थोड़ा सा पहले का प्रिंटिंग मिस्टेक है। विश्वास, देन सम्मान, स्नेह, ममता, केयर इज ममता, गाइडेंस इज वात्सल्य, रेवरेंस इज श्रद्धा, then glory is gaurav, and gratitude is kritagnyata, that is thankfulness, and love is what is prem, that is love. तो ये तो अपन ने पढ़ा था वैल्यूज, so I don't need to explain all these things again. समझ रहा है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी वैसे ये नोट्स में यहाँ पे इस यूनिट में जिस सर ने ये नोट्स बनाए मतलब क्या कहीं से लिए हैं, वहां पे उन्होंने नहीं इंक्लूड किया है ये, बट मैंने जानबूझ के डाला है। आपके नोट्स में इतना डिस्क्रिप्टिव नहीं आएगा, बट मैंने इसलिए यहाँ डाला है सो दैट यू कुड रिलेट कि व्हाट वी आर बेसिकली यूनिट। अगर आज मैं खुद जब ये पूरा 4th यूनिट खत्म की हूँ, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ न्यू सब्जेक्ट फॉर मी, सो नाउ आई रियलाइज दैट देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट एंड 4th यूनिट। पूरा यूनिट बन के एक सब्जेक्ट बना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ डाला कि वैल्यूज इन ह्यूमन रिलेशनशिप मतलब एस्टेब्लिश वैल्यू। कुछ ऐसा है कि जो स्थापित है, वहां पे लिया है स्थापित है, मतलब बाय डिफॉल्ट। आज ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि भाई हमको नहीं चाहिए कि कोई हमको रिस्पेक्ट करे या हम किसी को रिस्पेक्ट करे, या ट्रस्ट, जैसे आज मानते हो ना कि ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बाय डिफॉल्ट हर कोई मानेगा कि ये वैल्यूज होनी चाहिए। यस, डू यू एग्री? Yes, यस ma'am. मैम। है ना, तो बाय तो ये जो वैल्यूज है, दैट इज वैल्यूज इन ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप। नाउ इसमें 2 चीजें हैं, ये है एस्टेब्लिश वैल्यू और इसके बाद का है एक्सप्रेस्ड वैल्यू। नाउ व्हाट इज एक्सप्रेस्ड वैल्यू? दिस इज आल्सो नॉट इंक्लूडेड इन हियर, नोट्स में डाला नहीं है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। एस्टेब्लिश वैल्यू क्या है? ट्रस्ट, संयम, कंट्रोल, व्हाटएवर। हाँ, वो जो आप फॉलो करते हो एस्टेब्लिश वैल्यू को, वो होता है, उसको जब अपन एक्सप्रेस करते हैं तो ये वैल्यूज बनते हैं। जैसे कॉम्प्लीमेंटरीनेस, कॉम्प्लायंस, निष्ठा, जेनरोसिटी, स्पॉन्टेनिटी, ओबीडियंस, ईज, सेल्फ रेस्ट्रेंट एंड ananyata means unanimity means you what you can say is, so these are, wait, first one by one I'll tell you. So these are the expressed values. What is expressed value? That is what you express. जैसे suppose if we have the feeling of trust, जैसे अगर अपने को किसी पे ट्रस्ट है, ठीक है, अगर आपको किसी पे ट्रस्ट है तो बहुत नेचुरल है कि आप उस इंसान के साथ आपका बहुत ही कॉम्प्लीमेंटरीनेस, मतलब क्या होता है कि आप उसके साथ
कॉम्प्लीमेंट करेंगे ने आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रह सकेंगे. Only one example, one point I'll explain because this is not in your syllabus. But मैं आपको बताना चाह रही थी ये values कि ये पूरे 30 values total बनते हैं, but यहाँ पे उन्होंने नहीं include किया है. But these are the values. कैसा होता है जैसे जो पहला value है established value मतलब जो स्थापित है by default कि आपको trustworthy रहना है. तो उससे होता क्या, अगर आप विश्वासु रहे तो आपके साथ जो भी इंसान रहेगा, चाहे आपका फ्रेंड हो, आपके पेरेंट्स हो, उनके साथ आपका तालमेल बराबर रहेगा. वो तालमेल को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटेरीनेस. मीन्स यू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. मीन्स आप एक दूसरे के साथ अच्छे से रह सकोगे. समझा क्या व्हाट इज एक्सप्रेस्ड वैल्यू एंड एस्टेब्लिश्ड वैल्यू का डिफरेंस? यस, थोड़ा बहुत कहेंगे. यस एवरीवन. देखो ये जो है ना, ये एस्टेब्लिश वैल्यू, ये अपन ने पूरे एक साथ पढ़े हैं पिछले बार. तो आप जैसे अफेक्शन है, तो अफेक्शन एक वैल्यू है. बट इफ जैसे आपके पेरेंट्स को आपके लिए अफेक्शन है, अगर आप कभी परेशान हो तो मे बी आपकी मम्मी आपको हक करेगी. हाँ, तो दिस इज व्हाट शी इज हैविंग अफेक्शन. बट व्हेन शी इज हगिंग यू, या जब आपको पकड़ रही है, आपको व्हेनेवर यू आर इन डिफिकल्टी, होता है ना मम्मी पापा, कभी आपके पापा आपके सिर पे हाथ घुमा देंगे या कभी पीठ थपथपा देंगे. सो व्हाट इज दिस इज देयर अफेक्शन. तो ये अफेक्शन उनके अंदर है, मगर वो उसको एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं? तो वो जो एक्सप्रेस करते हैं उससे एक एक दीज आर द वैल्यूज अलग अलग तरीके से. जैसे स्पॉन्टेनिटी, जेनरोसिटी. जैसे अगर आप बोलते कि किसी को हेल्प करना है ना, तो हेल्प कर रहे हैं तो दैट इज योर जेनरोसिटी. सो वॉट एवर दीज वैल्यू, बेसिकली देर आर ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप में संबंध अच्छे होने के लिए बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यूज होते हैं, दैट इज एस्टेब्लिश वैल्यू. मगर जरूरी नहीं है कि हर कोई वो फॉलो करे, और जो उसको फॉलो करता है उस वैल्यूज को बोलते हैं एक्सप्रेस्ड वैल्यू. That is, you express yourself. I hope it is clear. Yes, ma'am. We don't no need to go in so details because थोड़ा सा अभी और इसके बहुत डिटेल में चले जाएंगे तो अपने को तो भी तो बाबा वगैरह ही बन जाएंगे अपन, ठीक है. बट बेसिकली एक समझ लो कि these are the values which एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ने भी फॉलो करना चाहिए. जैसे कमिटमेंट है ना, वॉट एवर यू प्रॉमिस यू शुड डू. देन जेनरोसिटी, यू शुड बी हेल्पफुल. स्पॉन्टेनिटी मतलब तुरंत, जैसे किसी को हेल्प चाहिए तो, या फिर रास्ते पे कोई जाते जाते गिर गया, अचानक अपने सामने किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, कोई गिरा, तो तुरंत होता है बाय डिफॉल्ट. अपने में से बहुत लोग ऐसे भी रहते हैं जो इग्नोर करके चले जाते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रुकते हैं, फट से किसी को हेल्प करेंगे, गाड़ी उठा के दे देंगे, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनिटी, मतलब तुरंत आप हेल्प कर रहे हो. देन ओबीडियंस, व्हेन यू से दैट यू ट्रस्ट और यू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तो अगर आप उनकी हर चीज को आज्ञा फॉलो करेंगे तो उसको बोलते हैं ओबीडियंस. देन ईज मतलब यू शुड बी वेरी सिंपल इन योर लाइफ, सरलता, सिंप्लिसिटी. देन सेल्फ रेस्ट्रेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ, स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग रॉन्ग, दैट इज सेल्फ रेस्ट्रेंट. एंड अनन्यता इज दैट यू हैव टू बी व्हाट यू से, यू हैव टू बी डिटैच होना चाहिए. ये नहीं, किसी के साथ आपको कोई ग्रज नहीं कैरी करना चाहिए. So these are the expressed value. Now what I want to tell you here is, ये तो थर्ड पॉइंट पे आ रहे. एक बात ख्याल रखो, एस्टेब्लिश वैल्यूज मतलब जो मूल वैल्यूज हैं, जो स्थापित हो गए हैं. और एक्सप्रेस वैल्यू मतलब जब आप एस्टेब्लिश वैल्यू को एक्सप्रेस करते हो, मतलब उसको फॉलो करते हो, तब वो होते हैं एक्सप्रेस वैल्यूज. मतलब उसके जो असर होता है उसको बोलते हैं एक्सप्रेस्ड वैल्यू. आई होप इट इज क्लियर एवरीवन. Yes, ma'am. पॉइंट नंबर बी. Yes, ma'am. तो अभी तक अपन ने दो देखा वैल्यूज. पहला था सेल्फ में, दूसरा वैल्यूज अपन देखा ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप में, ठीक है. अब थर्ड अपन देख रहे हैं वैल्यूज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इन इट्स पार्टिसिपेशन इन यूनिवर्सल ह्यूमन. ये मतलब आप जब बाहर when you order यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर मतलब when you are interacting with the society, ठीक है, उस टाइम पे, या सोसाइटी में भी फिर आपके वही है when you are interacting outside yourself, that is with your friends again, with your society, then these are the values. First is perseverance, धीरता, धीर होना चाहिए. धीर बोलते ना, what is धीर मतलब you should have patience. Perseverance मतलब लगे रहो वाला होता है. So these are the मानव वैल्यू बोलते हैं, जिसको कि अगर आपको कामयाब होना है या अच्छे से एक दूसरे के साथ रहना है, so these are the values. That is धीरता. Second is bravery, वीरता. Generosity, that is उदारता, again the repetition. Kindness, that is दया. Beneficence मतलब कृपा, and compassion, that is करुणा.
So these are the values. If you have all these values in yourself, then definitely you will be a good human being. Yes, ma'am. Yes, do you agree with me? है ना? Yes, अगर ma'am. ये सब इतना अपन वैल्यूज पढ़ रहे थे, इसमें से 2 वैल्यूज भी अगर अपने अंदर आ गई ना, समझ लो क्लास सक्सेसफुल हो गया लाइफ में. पूरे आने चाहिए वैसे. But see, why this again I tell you, I told you in the previous classes also, that this subject has been मतलब introduced in engineering college because engineers are going and working in the society. सभी जगह है ये. तो आर्ट्स और फिलोसफी वगैरह में तो ये तो बेसिक हर चीज डिटेल में होगी. बट एटलीस्ट इंजीनियर्स के लिए इसलिए इंट्रोड्यूस किया है अभी ये, बिकॉज इंजीनियर्स आर गोइंग एंड वर्किंग इन द सोसाइटी बाहर, एंड दे आर ऑल्सो द मेन पिलर्स ऑफ द सोसाइटी. वन ऑफ द पिलर्स बोल सकते हैं इंजीनियर्स. So when they are going outside, if they have all these human values in them, then they will naturally contribute towards a good and healthy society. इसीलिए ये पढ़ाया जा रहा है कि देखो, जैसे अगर 4 दिन आपको किसी ने बोला कि तुम पागल हो, तो लगने लगता है कि नहीं कुछ दिन के बाद कि अपन पागल है क्या? लगता है ऐसा? लग सकता है मतलब? Yes, ma'am. है ना? कोई बोलता रहा है ना, कोई बोलता रहा कि तुम ऐसे हो, बहुत दिन तक अपने को लगेगा. फिर अपन खुद सोचेंगे कि यार सही में हर कोई ऐसा बोल रहा है, क्या मैं सही में ऐसा हूँ? तो इसीलिए उसी तरीके से इस तरीके से ये वैल्यूज, अगर हो सकता है कि आपको ये पढ़ाया गया, जैसे बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं, जैसे अभी आप इसके पहले भी आपने ये सारे वर्ड सुने हैं, बट एज अ सब्जेक्ट इसको कभी पढ़ा नहीं है. तो आज अगर कॉन्शियसली एज अ सब्जेक्ट या एज अ टॉपिक आप ये सब चीजें या वैल्यूज पढ़ते हो, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम, जैसे अभी यहाँ पे दिया है कि दया, कहीं क्रुएल्टी करने के पहले आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, मतलब हो सकता है आपके कदम रुक जाए, हो सकता है यू विल स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग रॉन्ग. दैट इज द आउटकम ऑफ दिस सब्जेक्ट बेसिकली. अभी एमसीक्यूज वगैरह तो सॉल्व करेंगे, ठीक है, बट एज अ टीचर आई वुड ऑलवेज लाइक दैट ऑल माय स्टूडेंट्स शुड ट्राई टू इनकलकेट. इवन आई एज अ ह्यूमन बीइंग, टीचर हूँ या पढ़ा रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं आई एम परफेक्ट. Many a times I also commit mistakes. Many a times I also have a very different perspective. होता है ना, जैसे वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं, बहुत काम आ गया तो अपन सामने वाले को गलती से समझ सकते हैं या अपन दुखी हो सकते हैं. तो ये सब भी नहीं होना चाहिए. आई एम ऑल्सो लर्निंग मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस. देखिए, मालूम तो सब था मगर फॉलो करना इज नॉट, मतलब दैट इज द थिंग व्हाई वी आर लर्निंग दिस सब्जेक्ट. ठीक है, तो ये जो जितने आपको वैल्यूज अभी मैं पढ़ा रही हूँ, इससे आपके लाइफ पे भी इफेक्ट होना चाहिए. तो जैसा परसिवरेंस, मतलब यू शुड गो ऑन ट्राइंग. धीर होना चाहिए. ऐसा नहीं कि एक बार फेल हो गए तो आगे ट्राई नहीं किए. देन यू शुड ऑलवेज ट्राई. धीरता कहाँ? संयम, मतलब धीर इज पेशेंस यू शुड हैव while dealing with yourself, while dealing with your family, while dealing with your society and while dealing with the nature. पूरे 4 लेवल्स पे ये चलना चाहिए. बिकॉज जो अपन ने 4 लेवल्स पढ़े, व्हाट आर द फोर लेवल्स? यस, 4 लेवल्स ऑफ लिविंग. रिपीट प्लीज ऑल ऑफ यू. क्या है 4 लेवल्स? अरे लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने. इंडिविजुअल, सेकेंड, अपने आप को सोचो ना, सबसे पहले आप हो. आपके बाद कौन रहता है आपके कांटेक्ट में? यस, आंसर प्लीज. सोसाइटी, फैमिली, मैम. फैमिली, वेरी गुड. सो फर्स्ट इज इंडिविजुअल लेवल, सेकेंड इज फैमिली. फिर फैमिली कहाँ रहती है? सोसाइटी, वेरी गुड. दिस इज द थर्ड लेवल. एंड सोसाइटी पूरी कहाँ है? एक नेचर, Environment. है ना? एनवायरमेंट, यस, एन एनवायरमेंट इज नेचर. सो दीज आर द 4 लेवल्स. तो ये जो आज ये सी जो वैल्यू है, जैसे पहला अपन ने सेल्फ में पढ़ा, सेकेंड अपन ह्यूमन टू ह्यूमन में पढ़ा, मगर ये जो सी वैल्यू है, जो अपन सी पॉइंट पढ़ रहे हैं अभी, अपन क्या पढ़ रहे हैं? वैल्यूज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इन इट्स पार्टिसिपेशन इन यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर. मतलब इसमें सब बातें, आप भी आते हो, आपकी फैमिली भी आती है, और सोसाइटी और नेचर भी आएगा. ठीक है, सोसाइटी आएगी खासकर. सो वॉट एवर यू आर डूइंग, यू शुड गो ऑन ट्राइंग. दैट इज परसिवरेंस. दैट यू शुड हैव अ धीर होना चाहिए टू डील विद एवरीवन, with yourself, with your family, with society and with nature. Then second is that bravery, veerta, that you should be able to live in harmony in again all the 4 levels. कहीं पे भी तकलीफ आती है तो you should be brave enough to help others. ठीक है. Then generosity again, the name itself says that is udarta, that is I am ready to help everyone. I am ready to invest myself, my body, my wealth towards
the society, yeah, towards my loved ones. So this is udarta. Then kindness, that is daya. Daya is also again same. अगर आप में एबिलिटी है तो आप थोड़ा सा किसी को अगर हेल्प कर दिए जिससे किसी की नीड्स फुलफिल हो गई तो उसको बोलेंगे काइंडनेस, है ना. इफ समवन इज हंग्री एंड इफ यू गिव देम द फूड, है ना, कोई अगर है जिसको जो कोई लाचार है या कोई मजबूर है, अगर आपने उसको हेल्प कर दिया या आपने थोड़ा सा उस पर दया दया जिसको बोलते हैं ना, दया आ गई आपको, तो उसका लाइफ अच्छा हो सकता है ना. इफ यू गिव समथिंग. देन कृपा. कृपा अगेन व्हाट वी कैन से that is if you have the fee means to fulfill anyone's needs but आपको एबिलिटी नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास सोर्सेज है, आपके पास बहुत पैसा है, मगर आप में वो एटीट्यूड नहीं है तो उसको नहीं बोलेंगे. इसलिए कृपा मतलब कैसा कि यू शुड हैव द एबिलिटी एज वेल एज यू शुड हैव द एटीट्यूड टू हेल्प देम, देन दैट इज कॉल्ड एज कृपा. कृपा है आपकी, बोलते ना, कृपा है आपकी मतलब दया है आपकी, इट्स अ ब्लेसिंग, मतलब आप हमारे साथ हो, उसको बोलते हैं कृपा. ठीक है. नेक्स्ट इज कंपैशन. कंपैशन ऑफर करुणा. करुणा इज अगेन दया. दैट इज अ स्मॉल लाइन ऑफ डिफरेंस इज देयर. दया मतलब आप किसी पे दया खाते हो, करुणा मतलब यू, आई होप यू, कंपैशन इज करुणा, मतलब किसी का किसी अगेन द सेम. इफ यू आर हेल्पिंग समवन then you can say that you are compassionate towards that person. So these are the 6 values which are the values for यानी यूनिवर्सल में सभी तरफ, मतलब कि मतलब सोसाइटी में आपको काम में आएंगे. देन नेक्स्ट इज, आई होप इट इज क्लियर. यहाँ तक समझा क्या? यस मैम. यस यस. ठीक है. तो देखो अभी वैसे रिलेट करना. पहला वाला था सेल्फ, सेकेंड वाला फैमिली, ह्यूमन टू ह्यूमन मतलब फैमिली एंड क्लोज वन, थर्ड वाला सोसाइटी, एंड दिस फोर्थ, दिस इज टू द नेचर. वैल्यूज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इन इंटरेक्शन विद द रेस्ट ऑफ नेचर, वास्तु मूल्य. तो अब ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है. हाँ, अपना मतलब ये चारों वैल्यूज. अभी वास्तु मूल्य मतलब क्या? सो दैट इज, इट इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग विद द रेस्ट ऑफ नेचर. सेल्फ, ये सब तो हो गया, सेल्फ हो गया, फैमिली होगी, सोसाइटी होगी. अब आपका नेचर के साथ भी कुछ है. तो पहला होता है उपयोगिता वैल्यू, दैट इज यूटिलिटी वैल्यू. नाउ व्हाट इज यूटिलिटी वैल्यू? मींस आप जो भी चीजें, जैसे अपन ने पढ़ा था प्रोडक्शन, पिछले बार में पढ़ा था कि आप जो भी कमाते हो, ठीक है, वॉट एवर यू आर अर्निंग एज अ फिजिकल फैसिलिटी, हाँ, वो आप क्यों करते हो? आपके बॉडी को, आपके सेल्फ को सेटिस्फाई करने के लिए. ठीक है. जो भी चीजें आप मेहनत कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग टूडे इज यू आर डूइंग टू सेटिस्फाई योर सेल्फ. राइट? इज इट क्लियर? ये बात है ना कि आज जो भी करते हो आप किसके लिए करते हो? खुद के लिए करते हो ना. वॉट एवर एक्टिविटीज यू डू राइट फ्रॉम द मॉर्निंग टिल द एंड एट नाइट, व्हाई यू आर डूइंग? कभी सोचा है क्या कि अपन क्यों करते हैं? यस. ये थोड़ा सा तो बात करो, मुझे भी समझ में रहा है, मुझे Yes, समझेगा ma'am. कि आपको समझ रहा है क्या. किस वजह से करते हो आप? सुबह उठ, आपने कभी सोचा है क्या कि अपन सुबह उठते हैं, यू ब्रश योर टीथ, यू टेक अ बाथ, यू हैव योर ब्रेकफास्ट, देन यू कम टू कॉलेज, स्टडी, देन गो इन द इवनिंग, फ्रेंड्स, है ना, जो भी एक रूटीन, एक स्टैंडर्ड रूटीन बता रही हूँ मैं, सबका रूटीन अलग अलग हो सकता है. तो ये सब हम जो करते हैं अपनी दिनचर्या, ये क्यों करते हैं? व्हाई डू यू डू फ्यूचर के दिस? लिए मैम. फ्यूचर के लिए, बिल्कुल. तो फ्यूचर के लिए करते हो आप, है ना, ताकि आपको फ्यूचर में एक फ्यूचर के लिए तो है कि आप कुछ अर्न कर सको. राइट? यू विल बी एबल टू अर्न. और साथ साथ आज में भी कि यू आर एबल टू नर्चर योर बॉडी प्रॉपरली, नर्चर योर सेल्फ. बराबर है? आज के लिए और फ्यूचर के लिए. यस. यस मैम. यस मैम. जैसे अभी आज आप खाना खा रहे हो, तो आज आप खाना खाओगे तो आपकी बॉडी को आपको स्ट्रेंथ मिलेगा. राइट? इफ यू आर बाइंग न्यू क्लोथ्स एंड वियरिंग इट टुडे, तो आपको अच्छा लगेगा. सो व्हाट एवर फिजिकल फैसिलिटीज यू आर गेटिंग, यू आर डूइंग इट टू सेटिस्फाई योरसेल्फ. सो उसको बोलते हैं यूटिलिटी वैल्यू. दैट इज उसका क्या उपयोग है आपके लिए, तो उसकी वैल्यू क्या है. सो योर, व्हाट इज द वैल्यू? यू आर सेटिस्फाइंग योरसेल्फ टुडे, दैट इज योर बॉडी, एंड फॉर द फ्यूचर ऑल्सो. देन आर्टिस्टिक वैल्यू. अब आप ये जो चीजें आप आज कमाओगे या आप जो भी लोगे, अगर आपने उसको जपा बोलते ना, जपून ठेवलं तुम्ही त्याला, उसको बोलते हैं आर्टिस्टिक वैल्यू. वॉट एवर यू हैव टुडे, इफ यू
preserve it, and if you present it in a proper way, that is called as kala मूल्य. Present it properly means जो भी आप में गुण है उसका जब आउटकम आएगा, जैसे प्रोडक्टिविटी आएगा, जैसे आज आप बोल रहे थे कि अभी जो आप पढ़ रहे हो ये फ्यूचर के लिए, ये जो फ्यूचर में जो आप दिखेगा उसको बोलते हैं आर्टिस्टिक वैल्यू. आर्टिस्टिक मीन्स today you are studying engineering, but when you will become a software engineer and when you will be working, तो आपका एक प्रेजेंटेशन प्रॉपर रहेगा सोसाइटी में. उस वक्त आपको क्या बोलेगा, यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर. दिस इज कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं आर्टिस्टिक वैल्यू. वॉट एवर यू आर डूइंग उसका प्रॉपर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन इज आर्टिस्टिक वैल्यू. मैम स्क्रीन इज नॉट विजिबल मैम. स्क्रीन इज नॉट विजिबल. यस मैम, ब्लैक है. अरे ये क्यों मुझे दिख रहा है? वेट. ओके, अभी देखो. ब्लैक है मैम. नो ब्लैक ही है. ब्लैक है. ऐसा होना तो नहीं चाहिए था. वेट. नाउ व्हाट यू कैन सी, अभी दिख रहा है कि आपको, मतलब यू आर शेयरिंग योर स्क्रीन ऐसे लिखा हुआ? नो मैम. अच्छा, वो भी नहीं दिख रहा है क्या? वेट, उसको भी सेटिंग हुआ होगा. मैम आर दिख रहा अभी. अगेन, हाँ क्या दिख रहा है? मैम आर दिख रहा, अभी दिख रहा है मैम. ओके, दैट इज माय, अभी दिखेगा शायद. अब देखो. यस मैम दिख रहा है. हाँ ठीक है, गुड बेटा, थैंक यू फॉर टेलिंग मी, बिकॉज मुझे दिख रहा था वो कुछ तो हो गया होगा या फिर मुझसे बंद हो गया होगा. मैंने ऐसे ही स्टार्ट कर दिया था ना, तो मे बी वो चला गया होगा. ठीक है, सो ये 4 वैल्यूज थे. हाँ, तो देखो आज अपन क्या पढ़ रहे हैं, एक एथिकल ह्यूमन कंडक्ट. डेफिनेटिवनेस ऑफ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट मीन्स दैट व्हाट हैज बीन फिक्स्ड. एक एथिकल ह्यूमन कंडक्ट कब होता है? अब समझ में आया, जब ये चारों चीजें आप फॉलो करेंगे, अगर ये पूरा चारों मिलके बनता है, और 2 है पॉलिसी एंड कैरेक्टर, ये सब मिलके बनेगा आपका एक ह्यूमन कंडक्ट, एथिकल ह्यूमन कंडक्ट. आई होप इट इज क्लियर कि आप क्या पढ़ रहे हो. यस यस मैम. नाउ सेकेंड पॉइंट, जैसे पहला था वैल्यूज. देखो बेसिकली डेफिनेटिवनेस ऑफ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट हैज 3 एस्पेक्ट्स. फर्स्ट इज वैल्यू में अपन ने 4 लेवल्स पे वैल्यू देखे, समझ रहा है ना सबको अच्छे से अभी. और सेकंड है वैल्यू, पहला था वैल्यू, सेकंड है पॉलिसी, दैट इज नीति. आपकी नीति कैसी होनी चाहिए. हाँ, सो नाउ द पॉलिसी हैज 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज इकोनॉमिक पॉलिसी, दैट इज अर्थनीति, अर्थव्यवस्था. जो अर्थ मतलब इकोनॉमिक. द पॉलिसी ऑफ फॉर एनरिचमेंट ऑफ वेल्थ. नाउ यू आर एबल टू सी द स्क्रीन एवरीवन. यस मैम. And second is political policy, that is Rajya Niti, policy of protection of body and wealth. And third is policy of for universal human order, that is Dharma Niti. Yeah? That is policy for right utilization of mind, body and wealth. बड़ा अच्छा कंसेप्ट है ये. देखो यूनिवर्सल ह्यूमन कंडक्ट पढ़ रहे हैं आप, आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए. तो पहले वैल्यूज हो गया. अब वैल्यूज से पेट भरेगा क्या? नहीं. अब आपको पैसा भी कमाना है, तो पॉलिसी यानी आपकी नीति कैसी होनी चाहिए वो पैसे को यूटिलाइज करने के लिए, या आपका वॉट एवर द मॉनिटरी बेनिफिट्स यू आर गेटिंग, उसको आपने कैसे. तो पहला होना चाहिए कि आपको कैसे आपने द पॉलिसी फॉर एनरिचमेंट ऑफ वेल्थ, आप जो वेल्थ कमा रहे हो उसको कैसे बढ़ाना है, वो पहली होती, दैट इज अर्थ नीति. सेकेंड इज प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी एंड वेल्थ. आपने पैसा तो कमा दिया, मगर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके बॉडी को भी आपको प्रोटेक्ट करना है, दैट इज बॉडी इज यू एंड योर सेल्फ. And second is wealth. And third is आपकी बॉडी, वेल्थ और माइंड, यानी आपका पूरा तीनों चीज, राइट यूटिलाइजेशन ऑफ माइंड होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए और वेल्थ होना चाहिए. यानी उसको बोलते हैं धर्म नीति. तो 3 टाइप्स के है पॉलिसी में. ठीक है, आपकी पॉलिसी में इकोनॉमिक पॉलिसी, पॉलिटिकल पॉलिसी एंड पॉलिसी फॉर यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, दैट इज धर्म. यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर एक समझ लो, यूनिवर्सल म्हणजे जो सोसाइटी के लिए है. धर्म यानी बेसिकली जो आपका क्या धर्म है, और वो सोसाइटी मतलब फिर सब आ जाता है. आप, आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी और आपका नेचर. तो वॉट एवर यू, बेसिकली नीति मीन्स हाउ यू यूटिलाइज. व्हाट डज नीति मीन्स? नीति का मतलब है कि जो भी आप वॉट एवर यू शुड डेवलप, यू शुड बी एबल टू डेवलप एन एथिकल सेंस इन ऑल योर एक्टिविटीज. यू हैव टू अडॉप्ट अ पॉलिसी. आपको ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करना है जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए है.
पॉलिसी का मतलब समझ रहे हैं क्या? ह्यूमन वेलफेयर, आदमी के अच्छाई के लिए आपने वो आपकी जो भी आप वे ऑफ जैसे पैसा कमाना है तो पैसा भी आपने ऐसा इस तरीके से कमाना चाहिए जिससे आपका मतलब इट शुड बी इन द मतलब सही तरीके से कमाना चाहिए. ठीक है, तो बेसिकली whatever the plan you do, whatever you plan, whatever you implement, it should be the whatever the resources you are generating, it should be the right utilization. Right utilization होना चाहिए पूरे resources का, that is yourself, your body and wealth. ठीक है, देखो ये जो मन, माइंड, बॉडी और वेल्थ है ना, इसको बोला है तन मन धन. ठीक है, बॉडी है तन, माइंड है मन और धन है वेल्थ. ठीक है, तो तन मन धन का सही तरीके से उपयोग करना इज पॉलिसी. दैट इज उसकी कैसे सही तरीके, सही नीति लगाना, सही पॉलिसी लगाना टू यूज टू जनरेट these resources, that is called as second aspect. समझा क्या what is policy? यस मैम. यस मैम. समझ रहा है क्या रे सबको? देखो मैं फिर से एक बार बताती हूँ. पहला अपन ने वैल्यूज पढ़ लिया, दूसरा है ये पॉलिसी. यानी पॉलिसी का है कि आपका जो भी रिसोर्स है, आपकी बॉडी दैट इज योर तन, आपका मन, माइंड भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है. माइंड माइंड सही है तो तन और मन सब सही रहता है फिर. एंड थर्ड इज योर मनी. सो तन मन धन का सही तरीके से उपयोग करना जिसकी वजह से सोसाइटी को फायदा ही हो, सोसाइटी को हार्म नहीं हो. दैट इज द सेकेंड पॉलिसी, सेकेंड एस्पेक्ट. एंड थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कैरेक्टर. नाउ दिस हैज बीन वेरी मतलब नाउ यू आर ऑल ग्रोन अप, सो ऐसे कुछ ये नहीं है, बट सी कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. Now what is character? मतलब character is the definiteness of my desire, thought and selection gives definiteness to my living. अब ये छोड़ दो, ये बहुत ही बड़ी definitiveness of character is the outcome of definitiveness of my behavior and work. Basically there are three main characteristics. Chastity in conjugal relationship, that is chastity in husband-wife relationship. Nowadays we see divorce is becoming very common. ठीक है ना, सारे जितना टीवी सीरियल्स देखते हो क्या आप लोग? बॉयज गर्ल्स देखती है क्या? बॉयज भी देखते हैं क्या? डू यू सी टीवी सीरियल्स जो ये आते हैं, कौन सा वो कलर, सोनी, हिंदी सीरियल्स? यस, हाँ या ना बोलो. देखते हैं मैम. कभी कभी देखते हैं. अच्छा हाँ, ना देखो तो ज्यादा बेहतर है. रीजन बीइंग बताती हूँ, गर्ल्स भी एक क्लास में. यस मैम. अच्छा, कौन सा फेवरेट सीरियल चल रहा है आजकल? गर्ल्स बता सकती है, बॉयज भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं है. हिंदी सीरियल कौन सा अच्छा चल रहा है? सारे, अभी तो बहुत सारे चैनल्स है ना. यस एनीवन? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे बताना है यहाँ, इसलिए मैं ये पूछ रही हूँ. अरे कोई तो एक आधा सीरियल का नाम बताओ. हिंदी सीरियल. ससुराल सिमर का. ससुराल सिमर का, ओके. एंड और भी कोई है क्या? मैंने नहीं देखा है बेटा, आई हैव नॉट सीन एनी ऑफ देम. एक सीरियल थोड़ा सा मुझे पता है, थोड़ा बहुत, वो भी वेरी पॉपुलर अमंग, अनुपमा आई थिंक. अनुपमा सीरियल सुना है क्या आप लोगों ने? यस मैम. देखते हो, कोई किसी ने देखा है? यस मैम. अच्छा, कैसा लगता है? अच्छा है. यस मैम. व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग इन दैट बेटा? जल्दी बताओ उसमें क्या है. Yes, the character, the lead role है ना. ससुराल सिमर का भी मुझे पता नहीं है कि वो है क्या एस्पेक्ट्स. एक ही मैंने एक दिन देखा था उसमें, मुझे तब तक मुझे लगता था वही भी सीरियल और आज भी वही है. बट सी व्हाट आई वांटेड टू टेल यू थ्रू दिस इज कि अभी जो भी सीरियल्स है ना, उसमें बहुत कॉमन है अ मैन लिविंग हिज वाइफ एंड एक्सेप्टिंग सम अदर लेडी. सो व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट करेक्ट. If you are not being able to adjust with anyone, that is a different thing. Divorce then is a good option. अगर बहुत ही मुश्किल है तो. बट क्या हो रहा है, ये सब सीरियल्स और ये सब जो कल्चर दिखाया जा रहा है, इसके लिए ना बहुत नॉर्मल लगने लग जाता है अपने को. इन्हें एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है अपना बहुत सारी चीजों के लिए. तो ये बराबर नहीं है. You should be very मतलब it is one of the that husband and wife, they should be very faithful to each other. इसलिए वो स्व नारी स्व पुरुष, दैट इज दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड दैट. यू शुड स्टिक टू योर मैन एंड योर women,
You should not be so easy doing all these things. I hope I am able to explain you properly this. You are so young ना, but ये point है यहाँ, so that's why I have put it here. Yes, समझ में आ रहा है? What Yes, ma'am. this shows your charitra, that is character. How your character is. See, basically हर किसी में अच्छाई और बुराई होती है. अगर अपन हर किसी की बुराई लेके चलते रहे तो कोई किसी के साथ रह ही नहीं पाएगा. तो बने तक कोशिश करना चाहिए. When you of course आप बहुत छोटे हैं आप ये सब चीजों के लिए, but बने तक ये कोशिश करना चाहिए कि you should adjust with your partner and you should stick to them. ठीक है, प्लस माइनस होते ही रहता है. एकदम ही इम्पॉसिबल है तो बात अलग है. बट ये जो आजकल सीरियल्स वगैरह चल रहे हैं ना, इसमें बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ. बहुत वैलिड बताते हैं ये सारे रिलेशनशिप. सो दैट इज रॉन्ग. बहुत ही सही तरीके से पेश किया जाता है गलत चीजों को. और जो जनरेशन आप लोगों का है, आप लोगों का एक्सेप्टेंस इतना बढ़ गया है ये सब चीजों के लिए. कहीं कहीं अच्छा भी है. जैसे पहले के अगर अपन देखेंगे, पहले में वीडियो मैरिज नहीं होता था, है ना. जैसे कोई वीडियो हो गई या किसी का सेकेंड मैरिज नहीं हो सकता था, तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर वीडियो हो गई तो उसने क्राइम कर दिया है. है ना, शी ऑल्सो हैज अ राइट टू लिव. तो वहां तक ठीक है कि री मैरिज, दीज आर ऑल गुड थिंग्स. बट अभी क्या हो गया है, वो इतना ज्यादा कॉमन हो गया है कि नो वन इज ट्राइंग टू मेंटेन द रिलेशनशिप. बहुत इजी हो गया है टू ब्रेक ऑफ एंड मूव अहेड. ये जो कंसेप्ट है ना, ये बड़ा डेंजरस हो गया है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज फर्स्ट पॉइंट, दैट इज चेस्टिटी इन कॉन्जुगल रिलेशनशिप, दैट इज chastity in husband wife relationship, that you should be loyal to your partner. Then second is rightful production, acquisition and utilization of wealth. स्वधन जिसको बोलते हैं, कि आपका जो भी आप जिस तरीके से भी पैसा कमा रहे हो और रख रहे हो, उसका सही तरीके से आपको यूज करना है. And third is kindness in behavior and work. Whatever, wherever you are working, you should be kind towards your towards your workplace. आपका जो भी बिहेवियर है आपके वर्क प्लेस पे, या आप अपने खुद के बिहेवियर के लिए, काइंडनेस इन बिहेवियर एंड वर्क मतलब आप जो भी काम करते हो अपने साथ, तो लोगों के साथ जो आपका व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए. तभी आपका इसी कैरेक्टर मीन्स जस्ट नॉट वन एस्पेक्ट कि एक आदमी और लेडी कैसा, हाउ शी इज और ही इज लिविंग, दैट इज नॉट द ओनली थिंग विच शुड. जैसे बोलते हैं ना, अरे उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है. Character doesn't mean man and woman relationship only. There are other perspective also, that whatever money you're earning or whatever behavior you're doing, that also makes your character. If you're good at your workplace, you're good at with your family, that also shows that you're a man of a character. Okay, only man and woman relationship does not tell that your character is good or bad. There are other aspects also. I hope it is clear what I wanted to tell you. Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Great. Now this is the last I will just read out this. The definitiveness of human conduct in terms of values, policies and character is termed as ethics. ठीक है, ये conclusion है पूरे topic का. The ethics in the living of an individual can be imbibed only through inculcation of values, policies and character. And this is possible through the process of ensuring right understanding through self-exploration. Self-exploration अपन ने यूनिट 1 में पढ़ा था. एक्सप्लोर करो, आप अपने अंदर देखो कि आप में क्या क्वालिटीज है, आप में क्या वैल्यूज है, और वो वैल्यूज को अगर अच्छी है तो उसको कंटिन्यू करो, अच्छी नहीं है तो उसको चेंज करो. तो राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको कि आप क्या वैल्यूज है आप में और आप कैसा बिहेव कर रहे हो. सो दिस ऑल विल ब्रेक अप, दिस ऑल टुगेदर ब्रिंग्स अ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट. ठीक है, यहाँ पे दिया है इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज, पॉलिसीज एंड कैरेक्टर. जो भी वैल्यूज है, जो भी पॉलिसीज है जो आज हमने पढ़ी है, जो वैल्यूज है जो हमने अलग अलग लेवल्स पे देखे हैं, दैट इज सेल्फ, फैमिली, सोसाइटी एंड नेचर, वो वैल्यूज. पॉलिसीज, पैसा कैसा कमाना है, पॉलिसी टुवर्ड्स राइट यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, राइट यूटिलाइजेशन ऑफ योर बॉडी, माइंड एंड तन मन धन का राइट यूटिलाइजेशन होना चाहिए. और थर्ड जो हमने पढ़ा आपका कैरेक्टर. तो ये तीनों चीजों का राइट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए. और ये राइट इम्प्लीमेंटेशन कब हो सकता है, जब आपको समझ में आए कि हाँ भाई, हम या तो कि हम राइट इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. ये कब समझेगा, जब आप अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोर करोगे. फर्स्ट आपको अपने अंदर झांकना है कि क्या मेरे में ये सभी चीजें हैं जिससे कि मेरा सोसाइटी में एक अच्छा, मेरा बिहेवियर एक अच्छा एथिकल रहेगा,
और अगर नहीं है तो यू हैव टू change your behavior and you have to adapt all these things so that you are and this adaptation and this behavior is called as ethical human conduct. And definitive means there are some set of rules, ये सही ये गलत, and this ये set ऐसा नहीं एक दिन में बना है, सालों साल जब लोग चलते आए हैं तब जाके ये वैल्यूज बने हैं और सबने इसको एक्सेप्ट किया है. ठीक है. So these are there are some values which are been acceptable in the society, and if you follow those values, then if you follow those values, if you follow those policies, and if you have a strong character, then we can say that you have a very ethical human conduct. I hope I am able to sum up the things properly. समझ में आया सबको? Yes, ma'am. यस मैम. Yes, ma'am. Great. आज का टॉपिक अच्छे से समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अभी थोड़ा सा जिस्ट बताओ कोई इसका क्या है, क्या पढ़ा अपन ने. थोड़ा सा मतलब अभी अचानक से तो नहीं जमेगा, पर थोड़ा सा सब लोग मिलके एक एक सेंटेंस कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. बताओ क्या क्या पढ़ा, क्या समझा. व्हाट इज एथिकल ह्यूमन कंडक्ट? यस, एनीवन? Try it out. अरे ह्यूमन कंडक्ट इज बिहेवियर, एथिकल ह्यूमन बिहेवियर मतलब क्या? हिंदी में बताओ. थोड़ा भी नहीं समझा क्या? क्लास क्या पढ़ा आज क्लास में? Ma'am, acceptance of basic human values. वेरी गुड. यस, वेरी गुड अथर्व. एक्सेप्टेंस ऑफ बेसिक ह्यूमन वैल्यूज. हाँ, एक्सेप्टेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन, Yes, ma'am. है ना? गुड. ठीक है, गुड अथर्व, दैट यू ट्राइड. वेरी नाइस. एक्सेप्ट करने का जो वैल्यूज है उसको, और उसको इम्प्लीमेंट करने का. ठीक है. और वैल्यूज के अलावा और क्या दो चीजें पढ़ी अपन ने? अच्छा, वैल्यूज कौन से लेवल पे पढ़े? अरे लेवल पे अभी सबने बताया था ना, बोलो. 4 लेवल पर है मैम. हाँ, यस पुरुषोत्तम, राइट आउट बेटा. 4 लेवल पर मैम. हाँ, खुद के लेवल पे, दैट इज इंडिविजुअल लेवल, और फैमिली मैम एंड Family सोसाइटी level. और नेचर. सोसाइटी, नेचर. हाँ, दिस 4 लेवल्स पे. ये जो आप वैल्यूज है, ये आपको चारों लेवल्स पे इम्प्लीमेंट करना है. और वैल्यूज के अलावा और दो क्या चीजें हैं जिससे अपना एथिकल ह्यूमन कंडक्ट बनता है? वैल्यूज. सेकंड इज पॉलिसी में. पॉलिसी. Policy. वेरी गुड. एंड थर्ड इज Character. कैरेक्टर. एक्सीलेंट. Good. Wonderful. Without having anything, you are giving the response. That means you are attentive in the class. And this feedback gives me energy to teach again in the next class. Okay. So this is all about the first topic. Second topic is human right violation and social disparities. अब इसमें ना बहुत सारा theory type है. I'll see it in the next class कि कैसा होता है. See, अभी इसके notes तो पूरे आपको बराबर मिल जाएंगे. ह्यूमन राइट्स वैल्यूएशन में क्या है, आई विल टेक इट इन द नेक्स्ट क्लास. दैट इज इट कम्स ऑन मंडे. और एक है वैल्यू बेस्ड लाइफ. सो आई विल ट्राई टू फिनिश ऑफ यूनिट 4 इन द सेकंड क्लास. ठीक है, दो टॉपिक्स ही, इसमें ज्यादा नहीं है. सो आई होप द क्लास वाज इंटरेस्टिंग टुडे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So I'll take the attendance and then we'll meet on Monday. Most Yeah. probably you will have a quiz on Saturday. फर्स्ट सैटरडे है ना, तो यूनिट 3 के ऊपर क्विज रहेगा आपका. Yes. तो आई विल अपलोड द नोट्स. मैं आज ही एक नोट्स अपलोड कर देती हूँ. See, मेरे पास ना एक मतलब जो बाकी टीचर्स ने दूसरे ब्रांचेस पे गूगल क्लासरूम पे एक नेट पे एक नोट्स अवेलेबल है, उसको अपलोड किया है. बट मुझे वो ऑफिशियल ग्रुप पे अपलोड करना ठीक नहीं लग रहा है. तो व्हाट आई विल डू, मयंक इज देयर टुडे इन द क्लास? मयंक नहीं है. ओके. सो मैं किसी एक को व्हाट्सएप पे वो भेजती हूँ नोट्स, जिसके अंदर पूरे चारों यूनिट के क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में दिया है, और बड़े अच्छे से दिया है. मतलब डायग्राम्स, अरे वो तो काफी सालों से वो यूनिवर्सिटी में ये कोर्सेज चल रहे हैं. तो मैं अगर वो आपको फॉरवर्ड करती हूँ व्हाट्सएप पे, तो आप अपने क्लास में अनऑफिशियल में डाल दोगे क्या? हु विल डू दैट? इसको भेजूंगा.
अथर्वा को मैम मी अथर्व को भेज दूंगा। अथर्व को भेजो। यस मैम। अथर्व, हाँ, सो अथर्व यू जस्ट सेंड मी हेलो योर नंबर, शायद होगा भी तो पता नहीं, बट आप मुझे आफ्टर द